All right, so now we have recording on. So, inshallah, we will share this lecture at the end. All right, so when we are dealing with rock mass, then these are the following things that we need to take care. So, the first thing is that block size. Okay, so we should know that what is the block size, and then what is RQD, and what is block shape, and number and types of joint sets. So in our previous class, we discussed what joint sets are, but just to jog your memories, I'll just draw a small maybe mountain here. Okay, it's a small mountain. So it has joints here, here, and then it has some joints here. So these joints that are parallel to each other, okay, so they are one joint set. So this one also, and this one, these are the second type of joint sets. So how many joint sets are there in this figure? How Two, many? two, sir. Two joint sets. And how I decided that there are two joint sets? Because the orientation of the joint would be similar to each other and they will be parallel to each other. So all the joints or cracks that are parallel to each other, they are called as joint sets. So here in this figure, we see there are two types of joint sets. Okay. And once we have decided joint set, then for individual joint set, for each joint set, we have to see its orientation, that what is the angle of the joint and what is the spacing of the joint. Okay. And by spacing, I mean that what is the space between them. Okay. What is the space between joints? So this is spacing. This is also important. And then there is a term persistence of a structure and roughness. Persistence means that how deep the joint is going inside the rock. Surface texture means that if I zoom this section here, so this means that is it having a wavy surface or is it having a smooth surface. So this is the surface texture of the joint. If this is the joint that I have zoomed up here, okay, so that will mean that is the surface texture, it is rough or smooth, whatever this. And then it says aperture, filling and wall strength. So the opening is called as aperture. The opening of the joint is called as aperture. Okay. And we tell that is there any filling, is there any clay material in between, or is there any water running or not. So all of these things have to be considered. So I'll repeat again that while we are dealing with rock mass and you are supposed to define that rock mass, so first of all, you need to tell the block size, RQD, the block shape, okay, and then number and types of joint sets. And then for each joint set, you need to tell the orientation, spacing, persistence, surface structure and roughness, aperture, filling and wall strength. And also you have to look if there is any water flowing in between the joints. If you have any question, please ask right now so I can respond to your question. सर ये जियोटेक्निकल मैपिंग यूनिट मतलब किस काम आते हैं? This means that what are the things that you are going to use for the your recording area. Okay, this means for geotechnical mapping unit, it means that what things you are going to note for this particular rock mass. It is just a terminology, don't worry about this. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay, some students still have problem. Let me solve their problem. Okay. Just a minute. All right, so coming back to our lecture, so these are the things that we need to
draw. I'll further explain it in just a minute. Are you seeing my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if this is a big mountain here, and we are seeing joints here, okay, let me draw them in a different color. Why don't I do that? Okay, so you see I have drawn the joint sets in different color. Okay, Yes. so there, from the figure we can see that there are two joint sets. One is in red color and one is in blue color. So you can imagine that they are extending into great depth. So you see here, this intersection zone. So the size of this area, let me hash it. So this is called as block size. That, and what is the block size? It is the piece of the solid rock between the joints. Okay. The red and blue lines, they are the cracks or the joints, and the solid rock in between the joints is called as block size. So this is the one thing that we needed to know for our specimen. And then RQD, we will see that in a while. And then the block shape, from the figure we can say it's almost square, so it can be rectangular or maybe diagonal. Okay, depends on the orientation of the joints. So then for each joint sets, we are interested in its orientation, its spacing. So what is orientation? So if I talk about this particular red joint, so I want to know that from north, what is its angle? So this is orientation, that from north, where is my joint located? Okay, this is orientation, and uh, this distance between the rock size, this is called as spacing. The spacing of this red joint is different. Spacing of the blue joints is different. So you also have to note the spacing. Okay, and then you have to need to know the aperture. So if I zoom this particular, let's say this particular crack here, let me zoom it down here. So if I zoom this up, so this is the edge of the mountain, and this is the red colored joint. Okay. मैं नहीं सुना कुछ मैं कोई नहीं सुना So this opening size is called as aperture. What is the in millimeter? What is the opening size? And then also we want to know that the roughness of the surface. This surface and this surface, are they rough or are they smooth? If I further zoom this up, so I want to know, is it zigzag or is it smooth? Okay. And then we also need to check, are there any fillings inside it? Is it filled with clay, or is there any water coming out of the joint or not? Okay. So these are the things that we want to know while we are dealing with rock mass. Any questions? सर ये अपर्चर जो है ये दो रॉक मैस के दरमियान का डिस्टेंस सर इसे अपर्चर It is the opening of the crack actually. ओके This is the crack size. Okay, एक minute. So let's, you see there are a lot of figures here. Can you see the figures?
Can you see the Yes, rock sir. figures? Yes, Yes, sir. sir. Let me zoom this up. So this is it's a little blurry image, so it might be a little tricky. But you see from this figure, there how many joint sets you see here in the figure? Sorry, क्या हुआ ऐसे? एक मिनट. कहाँ गई? So in this figure here, how many joint sets you see? कितने joint set नजर आ रहे हैं फिगर में? सर दो हैं। इसमें दो इंक्लाइन भी हैं सर। ठीक है, Two बिल्कुल सही है. sets of joints. दो हैं, एक बिल्कुल वर्टिकल जा रहा है, ठीक है. सो Yes, sir. और एक बिल्कुल जा रहा है उस तरफ, ठीक है. Yes, sir. तो अच्छा, अब जो आपको ये देखें जॉइंट की जो थिकनेस नजर आ रही है, तो ये इस पे हो एक तो ये इस पे जरा ये बड़ा मसला है. एक मिनट. हाँ जी, ये हाँ ये अच्छा इमेज आ गया. अब ज्यादा साफ नजर आया ना इमेज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो आपको ये देखें, आपको अपर्चर की पता लग रहा है ना, इनके जॉइंट्स की कुछ थिकनेस है, उनके दरमियान रॉक मैस है. तो ये जो आपको इनके दरमियान रॉक मैस नजर आ रहा है उसको ब्लॉक साइज कहते हैं. और आपको नजर आ रहा है कहीं रेक्टेंगुलर ब्लॉक शेप है, कहीं वो स्क्वायर है, कहीं बिल्कुल ही वो जो है वो कोई और शेप में जा रहा है. ऑलराइट, सो द थिकनेस ऑफ दिस ब्लॉक्स, let me solve that for you. जी, ये पिक्चर नजर आ रही है ना? Yes, पिक्चर sir. नजर आ रही है आपको? तो आप देखें कि तकरीबन हमारे पास ये इस डायरेक्शन में जॉइंट सेट्स हैं, ऐसे ही है ना? और तकरीबन कुछ आपको तकरीबन जॉइंट सेट इस तरह से नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है ना तकरीबन? जी सर। अच्छा, अब देखें कि ये जो एरिया है जॉइंट्स के दरमियान वाला, सो दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉक. तो इसका ब्लॉक साइज की ये कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, दिस इज वी आर इंटरेस्टेड इन. ठीक है, और इसकी शेप कैसी है, ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस. और प्लस अगर आप ये देखें, एक और चीज जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं वो है अपर्चर, जिसकी आप बात कर रहे थे. तो अपर्चर क्या है? ये आपको जो ओपनिंग साइज नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, और ये Yes, ओपनिंग sir. साइज है. सो दिस इज कॉल्ड अपर्चर, कि ये कितने मिलीमीटर में. इसमें आप वर्नियर कैलिपर या कोई चीज रख के आप देखें, यहाँ पर अपर्चर आपको ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है, दूसरी यहाँ पर कम नजर आ रहा है. तो ये जो साइज है, दिस इज कॉल्ड एन अपर्चर. ओके, कि इसकी ये देखें, ये वाली साइड जो है आपको ज्यादा अपर्चर, इसमें अपर्चर ज्यादा नजर आ रहा है ना इस वाली इसमें. तो Yes, sir. ठीक है. अच्छा, आज उसके बाद ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मेरा नॉर्थ है, अगर वर्टिकली ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ से कितने एंगल पे है, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कितने एंगल पर है, ठीक है. इसी तरह नॉर्थ से ये कितने एंगल पे है, और ये वाला जो फ्रैक्चर है ये कितने एंगल पर है, ठीक है. सो दीज आर द ओरिएंटेशन के आपको जॉइंट, हर जॉइंट सेट की ओरिएंटेशन पता होनी चाहिए. फिर उसके बाद यू चेक कि इन जॉइंट सेट्स के अंदर कुछ फिलिंग तो नहीं है या पानी तो नहीं निकल रहा. So these are all the information that we need to know whenever we are discussing rock mass. सर आपके कहने का मतलब ये है कि अपर्चर जो दो ब्लॉक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कह रहे हैं. जी हाँ जी. आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके दरमियान में आप अपना वर्नियर कैलिपर ऐसे करके रखेंगे, ठीक है, एंड देन यू विल इंसर्ट इट, और वो उसको आपकी इसकी थिकनेस बताएगा कि इनके दरमियान स्पेस कितनी है. अगर आप देखें यहाँ पे आपको स्पेस ज्यादा नजर आ रही है ना, तो ये जो थिकनेस है कि ये ओपनिंग कितनी है. ठीक है सर. ठीक है, सो दिस इज अपर्चर. Okay, sir. अच्छा जी, अब नाउ वी गो बैक टू वी मूव फर्दर. अच्छा, ये भी चीजें डिस्कस की, उन्हीं की डेफिनेशन है कि ब्लॉक साइज क्या है, ठीक है, एवरेज डायमीटर और टिपिकल रॉक ब्लॉक के जो फ्रैक्चर्स के दरमियान में सॉलिड रॉक का पीस है उसको हम ब्लॉक साइज कहते हैं, ठीक है. अच्छा, देन आरक्यूडी, the parameter core recovery is defined as the ratio of recovered core length to the total length drilled. RQD is defined as the sum of the lengths of core pieces larger than 10 centimeter expressed. ये आप लोगों ने पहले RQD पढ़ा होगा कहीं पर. यस सर, पढ़ा है.
इसको हम रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, और वो क्या होता हेलो हेलो। सर आवाज काट दीजिए आपकी। सब कुछ बंद हो गया सर। यार स्क्रीन है। सिर्फ सर की आईडी मुझे लगता है बंद हुई है, बाकी सारे ऑनलाइन ही। और सुनाओ अली वो भाई बेहतर कैसे? हो गया। यार बासत भाई क्लास ऑनलाइन है, बाद में गपशप कर लेंगे। ठीक ठाक हैं? है? जी जनाब, आवाज आ गई। यस सर। यस सर। सर आप परेशान हो गए। ऑलराइट, सो अगर हम इसके अंदर ड्रिलिंग करें, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसमें ड्रिल चलाऊंगा तो क्या होगा, ड्रिलिंग कोर जो है इस तरह आएगी, ऐसे ही है। ऑब्वियसली ये आपको बाहर से व्यू है, लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि ये हम रॉक का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं और उसके अंदर मैंने ड्रिलिंग की है, तो ये सारा मटेरियल इसके अंदर इसी तरह आएगा ना, पीसेस पीसेस अगर निकालूंगा तो। जी सर। एक मिनट में ले चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये देखें, ये अच्छी एक एग्जांपल है। यू सी हियर, ये देख रहे हैं कि ये एक टिपिकल रॉक कोर आपको नजर आ रही है। तो यू सी कि इसके अंदर आपको कुछ क्रैक्स हैं और कुछ रॉक का पीस है, ठीक है। सो दिस इज, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है। यस। मेरी ये स्क्रीन ही आ गई है सारी। सर की बात। जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। तो यार ये स्क्रीन से मुझे ही नहीं नजर आ रही, सिर्फ आरक्यूडी लिखा हुआ है, सबको नहीं आ रही। स्क्रीन किसी को भी नजर आ रही मेरे ख्याल। यार ये आरक्यूडी लिखा हुआ है, सर कह रहे हैं कि ये वाली बेकार ही आ रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ सिर्फ रही, स्लाइड ही हमें भी नजर आ नजर रही नहीं है। आ रही। हाँ यार, तो फिर फिर स्क्रीन किसी नजर किसकी आ रही हाँ है कह रहे हो? ऑनलाइन है सर, नेट पे। नेट नहीं का आ रही इशू बन नजर? गया होगा, कोई मसला। नहीं कोई नजर नहीं आ रही। तो फिर किस लिए हाँ कह रहे हो? पता नहीं कौन हाँ कर रहा है। पहले आ रही थी मोहसिन, नजर तुम मोहसिन, अपना अब नहीं आ रही। इंटरनेट देखो, तुम्हारी आवाज जो है बड़ी स्लो आती है। ओ यार बस खुद ही मैं स्लो बोलता हूँ। नहीं, वो ज्यादा जैसे स्लोमो नहीं बनाते वैसी आवाज आती है तुम्हारी। 3 इंच। शुक्र करो पहुंच जाती है तो। तुम तो बता रहे थे कि तुम वो पहाड़ों पे बैठे होते हो, वहां पे सिग्नल नहीं आते। यार अभी भी घर में थोड़ी हो, तुम बाहर बैठे यार हो, तुम जिधर सिग्नल आते हैं। ये आपका आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो रही है।
हाँ, चलो कोई बात नहीं यार। आवाज आ रही है? चलो अब कोई ना बोले, रिकॉर्डिंग हो रही है। हेलो, आवाज किसने देखनी है जी, बाद में रिकॉर्डिंग की तो। यार आवाज हाँ अरे यार क्यों परेशान हो रहे हो? क्लास होगी खत्म या नहीं वो यार सर का खत्म नहीं इंटरनेट हुई, थोड़ा स्लो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सिया ईशा की नमाज की ब्रेक कब होनी है? यार नासिर की मांगी आपने ना मगरिब की मांगी, अब इशा की याद आ गई है, जिनका टाइम ज्यादा है। असर की तो मांगी थी। मगरिब की किसी ने बोला ही कोई नहीं। यार कज़ा पढ़नी पड़ेगी अब। उस वक्त भाई फिल्टर पीक पे चल रहा था। यार अच्छा पता करो मेन यार इशू सर भला का क्या है? सर का कर्सर नहीं था नजर आता, सर खालिद का। जी हेलो। जी सर आ रही है आवाज। हेलो। ये सर अब आ रही है आवाज। ये पता नहीं क्या है, आज ऐसा मसला हुआ है इंटरनेट को। सर अच्छा आज जी, रहने लेट देते मी हैं। शेयर। नहीं तो फिर रहने देते तो फिर खत्म कैसे होगा कोर्स इतना ज्यादा जो है? खुद पढ़ोगे फिर? नहीं सर आप जल्दी जल्दी कवर कर। अच्छा जी, ओके। सो आरक्यूडी यू सी के आरक्यूडी जो है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को ना? जी सर। ये सर जी सर आ यस सर। आरक्यूडी जो है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। आप सिंपल एक रॉक पहाड़ पे जाएंगे या किसी भी ग्राउंड सरफेस पे जाएं, वहां पर आप ड्रिल करें तो जैसे पिक्चर हमने अभी देखी है इस तरह की आपको कोर्स बाहर आ जाएंगी। तो व्हाट यू विल डू, यू विल मेजर लेंथ ऑफ दिस कोर। जो इंटैक्ट पीस है, ठीक है, यानी क्रैक्स और क्रैक्स के दरमियान में यू विल मेजर द लेंथ ऑफ द कोर। और उसमें क्या है फिर आगे प्रोसीजर के यू विल सी के you will measure define the sum of the length of the core larger than 10 centimeter। तो अगर तो कोई कोर का पीस 10 सेंटीमीटर से लेस है उसको आप इग्नोर कर देंगे। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ये बिल्कुल छोटा सा पीस, ये जो नंबर के साथ लिखा हुआ है। हेलो, आप लोगों को पीस नजर आ रहा है? तो ये वाला इग्नोर हो जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से लेस है। तो अगर और ये वाला कोड है, हो सकता है इसकी लेंथ 13 सेंटीमीटर हो, तो आप क्या करेंगे 13 सेंटीमीटर, अगले की लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो 13 + 20, इस तरह जितनी भी कोर लेंथ है जो कि ज्यादा है 10 से, उन सबको आप ऐड करेंगे। एंड देन RQD इज इक्वल टू कोर लेंथ जो कि ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर है ओवर टोटल कोरिंग लेंथ। जितनी देर आपने ड्रिल मशीन चलाई है, ठीक है, अगर आपने 10 मीटर चलाई थी, 100 मीटर चलाई थी, और उसमें से जो सैंपल निकला है उनको सबको ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे आप टोटल कोरिंग लेंथ से, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ RQD और रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। तो अगर तो आपकी वैल्यूज 100 से 90 के दरमियान आ रही हैं सो इट्स एन एक्सीलेंट रॉक, और अगर वो लेस देन 25 आ रही है तो देन इट्स अ वेरी पुअर रॉक। सो वी हैव अ ह्यूज टेबल दैट एक्सप्लेन्स RQD. Volumetric joint count is expressed in terms of average number of joints per unit area or unit volume of the rock mass. जितना आपको रॉक का एरिया को नजर आ रहा है उसमें से आप देखें कितने जॉइंट्स हैं, सो देयर यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूमेट्रिक जॉइंट काउंट। ब्लॉक शेप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रैक्चर्स के दरमियान आपको सॉलिड पीस रॉक का नजर आ रहा है, सो दैट इज द ब्लॉक शेप। एंड वंस अगेन दिस इज रॉक मैस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं और ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं रॉक प्रॉपर्टीज को, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ रॉक मैस सिस्टम। यानी आपने देखा है कि रॉक कितना प्रॉब्लमेटिक है। अब हम लोग यहाँ इतना रियलाइज नहीं करते क्योंकि हम मोस्टली प्लेनर एरियाज में लाहौर में काम करते हैं, तो यहाँ पे रॉक के साथ हमारी डीलिंग कम है। लेकिन वंस यू गो फॉर नॉर्दर्न एरियाज, जो लोग NHA में काम करते हैं, तो उनको बड़ी अच्छी तरह आइडिया होगा कि जब वो रोड जो है माउंटेनियस रीजन से गुजरते हैं तो वहाँ पे रॉक के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन रॉक्स। सो डिफरेंट पीपल हैव सजेस्टेड डिफरेंट रेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे आपने एक रॉक की पिक्चर पीछे देखी, तो रॉक जो मटेरियल है उसको तो आप चले, कोर है आपके पास तो आपने उसको अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ टेस्ट कर लिया, उसमें कुछ और टेस्ट रन कर लिए तो आप उसकी क्वालिटी बता सकते हैं। लेकिन जब रॉक मैस की बात आ रही है, यानी जो पूरा पहाड़ है या जो पिक्चर्स हमें देखी हैं, तो वहां आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वो रॉक अच्छा है या बुरा है, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस टू डिफाइन द रॉक
वी हैव डेवलप्ड सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज रॉक मैस सिस्टम। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप हैं, पहला विकमैन है, फिर बिनियाविस्की है, फिर उसके बाद उन्होंने उसी को इम्प्रूव किया, फिर बार्टन है, फिर डिफरेंट HRR हैं। तो ओवर द ईयर्स डिफरेंट रॉक मैस सिस्टम जो है वैल्यूएट इवॉल्व होते रहे हैं। सबसे पहला रॉक मैस सिस्टम जो मिस है वो है तरजागीज रॉक लोड। बेसिकली पहली दफा जो रॉक मैस सिस्टम डेवलप हुआ था वो टनल बनाने के लिए ही ज्यादा रॉक मैस सिस्टम डेवलप हुए हैं, और अभी भी जो ज्यादा डेवलपमेंट है वो टनलिंग के प्रोसीजर्स को आसान बनाने के लिए ही है। तो इसलिए आपको जो रॉक मैस सिस्टम नजर आएंगे वो मोस्टली टनलिंग को डील कर रहे होंगे, लेकिन स्टिल यू कैन यूज इट फॉर योर पर्पसेज। अगर आप रोड बना रहे हैं, कुछ ही बना रहे हैं, तो यू कैन यूज दिस सेम सिस्टम। सो ये है लिस्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग रॉक मैस क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहला है तरजागीज रॉक मैस क्लासिफिकेशन, एंड देन वी हैव आर रॉक क्वालिटी इंडेक्स RQD, वो आपने अभी देख लिया है, वो सिंपल कोर करके आप उसकी RQD बता सकते हैं। फिर हम पामस्ट्रम्स क्राइटेरिया, वी हैव रॉक स्ट्रक्चर रेटिंग, जिसको हम RSR भी कहते हैं, एंड देन वी हैव जियोमैकेनिक क्लासिफिकेशन, एंड देन वी एट द एंड वी हैव रॉक टनलिंग इंडेक्स। ठीक है, so these are the different systems that we will discuss, that how they are used for classification. So first thing is first, Terzaghi's rock mass classification he developed in 1946, और उसने क्या किया था, he divided the rock into 1 2 3 4 5 6 categories। ठीक है, इसका मतलब है आप कहीं पे रॉक साइड पे जाएं, माउंटेन पे जाएं, वहां पर आप उसको तरजागी के जो रॉक मैस क्लास के सिस्टम के मुताबिक उसको आप देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तो एट द एंड आपकी जो रॉक टाइप है वो इन 6 में से निकलेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसकी आउटपुट है वो सिर्फ 6 है, और फिर उसने इसी को 6 को एक्सप्लेन करने के लिए उसने कुछ आगे बताया कि अगर ये टाइप होगी तो आप ये करें, अगर ये टाइप होगी तो आप ये करें। ये उसकी एक टिपिकल फिगर है तरजागी की। ठीक है, जो उसने यूज की थी, मैंने जैसे अभी पहले बात की थी कि वो भी टनलिंग को ही डील कर रहा था। ठीक है, तो मोस्टली टनलिंग के लिए ही बने हैं। सो यू सी दिस H इज द डेप्थ ऑफ द क्राउन ऑफ द टनल। ये जो टनल की, ये आपको टनल नजर आ रही है, इसमें अपर पोर्शन को कहते हैं क्राउन और नीचे पोर्शन को कहते हैं इनवर्ट। ठीक है, तो जो क्राउन है, जो टिप है या पीक है को टनल की, इसका ग्राउंड सरफेस कितनी डेप्थ में है, सो दैट इज कैपिटल H, और कितनी विड्थ होगी टनल की, सो दैट इज B, और फिर उसके बाद उसने HT जो है वो हाइट ऑफ टनल कही है, डेप्थ जो है ये उसने कहा है कि इतना इफेक्टिव एरिया जो है वो काम करता है। ठीक है, एनीवेज हाउ टू यूज दिस सिस्टम, आप क्या करेंगे कि आप ये उसने फिगर फिर एक्सप्लेन की है। लेट मी जूम दिस अप। सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। So first thing is that you will calculate HP. Sorry for this poor quality of the picture. And what is HP? HP का ये फॉर्मूला उसने लिखा हुआ है। ठीक है, so अच्छा जी, रॉक लोड फैक्टर HP। ठीक है, so what you will do, अब आप देखें कि इसने फॉर्मूला लिखा हुआ है, HP का हमारे पास फॉर्मूला है। तो ही सेज दैट कि अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है HP की, तो दैट मींस इट्स एन हार्ड एंड इंटैक्ट रॉक। ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू 0 से 0.05 B के दरमियान आ रही है, देन इट इज अ गुड क्वालिटी। लेट मी सी द डेफिनेशन ऑफ HP। एक मिनट में देखूंगी ना यहाँ कहाँ मिस हुई है HP का। एक मिनट, HP का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेट मी सी दैट फॉर यू। All right, so what you will see, so first of all you will go to the site, ठीक है, and you will see कि रॉक कंडीशन आप डिसाइड करेंगे कि आपकी रॉक कंडीशन क्या है। अगर वो रॉक कंडीशन हार्ड एंड इंटैक्ट है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे HP 0 है। ठीक है, और अगर वो उसकी रॉक कंडीशन जो है वो हार्ड स्ट्रेटिफाइड और शिस्टोसाइट है, देन यू विल सी 0 से 0.5 B। अगर उसके बाद मैसिव या मॉडरेटली जॉइंटेड है, ओके, नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एक्चुअली, बिकॉज ये ज़्यादा जियोलॉजिकल टर्म है, लेकिन ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ आनी चाहिए। आप इससे परेशान ना हो कि आप कैसे डिसाइड करेंगे फील्ड में कि वो क्रश्ड है या वो ब्लॉकी है, वो आपका काम नहीं है, वो आपका जियोलॉजिस्ट का काम है जो फील्ड में होगा। ठीक है, सो वंस द जियोलॉजिस्ट डिसाइड कि रॉक कंडीशन क्या है,
तो उसकी बेस पे आप जो हैं ये HP का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा आप देखें इसमें 1 पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंप्लीटली क्रश है तो उसने उसका फॉर्मूला लिखा है 1.10 इंटू बी प्लस HT। तो B क्या था, B जो थी वो इसकी टनल की विड्थ है बॉटम से या इनवर्ट से, और उसके बाद HT क्या था, वो हाइट ऑफ द टोटल टनल है। तो आप वो दोनों की जो आप डिजाइन कर रहे हैं वो वैल्यू वहां से लेंगे, और फिर ये जैसे यहाँ पे ये ज्यादा क्लियर है इस जगह पर, ठीक है। अगर मॉडरेटली ब्लॉकी एंड सीमी है तो उसे कहा कि 0.25 B माइनस 0.02 B प्लस HT। तो B की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, HT की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास। सिंपल आप प्लग इन करें तो आपके पास HP की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। प्लस उसने आगे क्या किया हुआ है, उसने फिर बताया कि अगर आपने अपनी कंडीशन डिसाइड कर ली है तो उसकी बेस पे आप ये देखें रिमार्क्स हैं उसने दिए हुए हैं कि अगर आपके पास यानी HP की वैल्यू जो है वो इसके दरमियान आ रही है, इसके दरमियान आ रही है, ठीक है, ये उसने वैल्यू लिखी हुई है। देन यू विल यूज नो साइड प्रेशर, यू विल यूज लाइट सपोर्ट, कंसिडरेबल साइड प्रेशर, ठीक है। तो इन सब में से उसके बारे में फिर उसने डिटेल बताई कि अगर ये वाली कंडीशन है तो आप ये केस लगाएंगे, ये वाली कंडीशन है तो ये केस लगाएंगे। एनी क्वेश्चन फॉर तरजागी? सर ये जो है ना HP सर वैसे इसकी अगर वैल्यूज देखी जाए ना हार्ड एंड इंटैक्ट रॉक तो ये 0 आ रही है सर। ये वो जिधर क्रैक्स आते हैं ना रॉक में, जिधर जिस पॉइंट तक क्रैक्स का इन्फ्लुएंस है, तो मुझे लगता है कि सर ये वो हाइट है सर, तब ये 0 दी हुई है इंटैक्ट रॉक के लिए हार्ड। एक मिनट मैं ना आपको फॉर्मूला निकाल देता हूँ, मेरा फॉर्मूला स्लाइड में मिसिंग है, एक मिनट बस। किधर गया? यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे ज्यादा क्लियर पिक्चर है, वैसे शायद आपको नजर आ जाए, आई डोंट नो क्यों नहीं खुल रही इधर। एक मिनट कहाँ गया जी, कहाँ गया? एनीवे दूसरी से गुजारा करना पड़ेगा, आई डोंट नो इसमें इमेज क्यों नहीं खुल रहा। हाँ जी अब आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं जी CR साहब? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये HP को सर ये जो हाइट है ना इसको देख के लगता है कि सर जो जिधर तक हमारी जो टनलिंग की वजह से फ्रैक्चर्स गए हैं ना सर, उस जो जोन है सर उसको मेरे ख्याल से HP कहते हैं सर। तभी सर वो हार्ड नहीं, तरजागी सेज कि जो इस टनल के ऊपर इफेक्ट आएगा ना, यानी आपने टनल बनाई है ये, वो कह रहा है कि पूरा ग्राउंड सरफेस जो है ना उसका स्ट्रेस इस पे नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू तरजागी वो जो हैश्ड एरिया है, ही सेज कि सिर्फ ये हैश्ड एरिया जो है सिर्फ इसी का लोड जो है आपके ऊपर आएगा, और आपने जो है, ठीक है, इसी लोड की वजह से जो है आपकी जो है वो या टनल कोलैप्स होगी या खड़ी रहेगी या उसको सपोर्ट की जरूरत है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू तरजागी ही सेज, इसका नाम इसलिए तरजागी रॉक लोड है कि वो कहता है कि सिर्फ इतना एरिया जो है वो ही डिसाइड करता है कि जो है कि टनल की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। इसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह वो कोई लेना देना नहीं है सर। वैसे एक्चुअली ऐसा होता तो नहीं। असल में आप देखें ना कि वो थ्योरी है ना, असल में क्यों ऐसा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता? आप कहते हैं सारा वेट इसका है। सर जो सिंक होल है उसी लिहाज से तो फिर वो काफी डीप होते हैं, लेकिन वो फिर भी सर्वर से सारा स्ट्रक्चर उड़ा देते हैं। हाँ जी, वो सिंक होल होता है ना, उसमें ऊपर सारा कुछ जो है वो कोलैप्सिबल मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहता है कि आपने, अब आप देखें कि जब आप जमीन के अंदर ये रॉक पहले पूरा इंटैक्ट था, ठीक है, आपने क्या किया उसमें टनल बनाई, टनल से क्या हुआ कि स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया ना, स्ट्रेस रिलीव हुआ ना। जब आप जमीन पे टनल बना रहे हैं, लेट मी शो दैट यू, ये आपका माउंटेन है, ठीक है। आपने क्या डिसाइड किया कि आपने कहा मैं टनल बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अब जब आपने टनल बनाई है आपने सारा मटेरियल इसके अंदर से रिमूव किया, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास ये स्ट्रेस आ गया ना साइडों से, जिसको हम हूप स्ट्रेसेस ऐसे कहते हैं।
बेटर अंडरस्टैंड कि जो आपके पास टनल है, आपने स्ट्रेस रिलीव किया है, तो उसका अफेक्ट जाहिर सी बात है एक सर्टेन रेंज तक जाएगा ना। जो आप बात करें ना सिंक होल की, सिंक होल्स आर जनरली अ लेसर डेप्थ, और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो जिसको हम कार्स्ट फॉर्मेशन कहते हैं, जहाँ पे सारा कैल्शियम रिलेटेड है, वो सिर्फ वहाँ होता है। और उधर क्या होता है कि कैल्शियम जो है, सॉरी कैल्शियम कह रहा हूँ मैं, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ठीक है, लाइमस्टोन जो है वो पानी से जो है वो साथ साथ वो इरोड होता रहता है, पानी में घुलता जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी छत गिर जाती है, ठीक है। जबकि ये जो बात कर रहा है वो जनरल रॉक की बात कर रहा है, जो कि बहुत हार्ड भी हो सकता है, बहुत सॉफ्ट भी हो सकता है। ही सेज कि उसकी वजह से जो आप स्ट्रेस रिलीव ले रहे हैं वो सिर्फ एक सर्टेन हाइट, जिसको उसने एचपी से इंडिकेट किया है, तो वो कह रहा है कि वो सिर्फ एचपी जो है वहीं पे वो अफेक्ट करेगा। एनी क्वेश्चंस? स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन ऑफ हो गई सर स्क्रीन नहीं आ रही है, अब देखो, अब आ रही है? नहीं सर अभी भी नहीं। नो सर सर नहीं आ रही। अच्छा मैं दोबारा से अब देखें जी। नो सर अभी भी नहीं आ रही सर। नहीं सर स्क्रीन नहीं आ रही। इतने नजर नहीं आ रहा? नहीं सर नहीं आ रही नजर, आपकी पिक्चर आ रही है नजर सिर्फ। अच्छा जी, क्यों नहीं नजर आ रही? आई डोंट नो। अच्छा पे हेलो सर नहीं आ रही स्क्रीन, आवाज आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, ठीक है, आवाज आ रही है बस। कोई बात नहीं। आप, मैंने जो आपको व्हाट्सएप भेजा है ना, आप वो जो है वो खोल लें जरा, जो आपको मैंने पावर पॉइंट भेजी है, उसमें आप आ जाए पेज नंबर 42 पे। जी जनाब, क्या हमें साइड यस सर 42 ऑन कर लो। ओके। ठीक है, और इसमें आप पेज 43 पे ही उसी की टेबल की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। पेज 44 पे आ जाएं। पेज 44 पे आ गए। यस सर 44। सर ये जो 43 के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब इमेज के ऊपर, इसे पढ़ने की जरूरत तो नहीं ना? ये पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ जी, कोई इससे अगली फिगर में ना उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन है वो, ये टेबल की, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। उसमें बस ठीक। आपके फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप इसे गो थ्रू करना, कोई आपको रटा नहीं। ठीक
ठीक है, उसकी अगली स्लाइड में डेफिनेशन आप स्किप कर दें, आप पेज 47 पे आ जाएं। स्क्रीन में दोबारा शेयर किया, मुझे बताएं, हम नजर आ रही है? सर नो नहीं सर, सर। ये कोई इंटरनेट का या कोई स्पीड का इशू है आपके इंटरनेट का? हाँ, वैसे 2-3 दफा डिस्कनेक्ट हुआ था, आई डोंट नो शायद ये वजह है। सर 4G है उनका भी। कोई मैंने वो भी ऑन किया तो उससे तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। सर आप ऐसे करें, कॉल को एक दफा कट करके दोबारा लिंक से ज्वाइन करें। मैंने अभी किया था ना वो, तो फिर उसी के बाद ही तो बंद हुआ है। सर एक दफा फिर कर लें। अच्छा चलो मैं करता हूं। यार छुट्टी कितने बजे होनी है? पता नहीं यार, इनको को बस आज के लिए सर बहुत हो आगे गया यार, बताते हैं। जोर के टाइम पे बैठे हुए यार सीआर बात सुनो, यार वो हैं। रखते अटेंडेंस नहीं। हमारी कोई जा यार रही है ना? क्या चीज? अटेंडेंस हमारी जा रही है ना, काउंट हो रही है ना? जी जी, वो बकायदा पूरी एक्सेल शीट बनती है, तो खुद ही ऑटोमेटिक एमएस टीम बनाता है। नहीं, वो कुछ लोग बार बार आ रहे हैं, ऑन ऑफ हो रहे हैं, तो उनकी अटेंडेंस मिस तो नहीं होगी? उसका उसका कोई इशू नहीं है, नहीं उसका कोई इशू नहीं है। सर कह रहे थे कि उसका जिसने कोई एक नहीं, बार नाम लिंक आना पे चाहिए यस बस। जिसने एक बार लिंक पे यस कर लिया, उसकी काउंट हो जाती है। हाँ अब देखिए जी, आप स्क्रीन आ रही है? यस सर, अब आ रही है। यस सर, यस सर। चलो जी जी, सर, आ ओके जी। गई है अच्छा जी, उसके आइडिया। बाद अच्छा स्लाइड नंबर 44, 45, 46 जो है, ठीक है, उनको आप बस गो कर लें, उससे कोई इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अब आप आ जाए स्लाइड नंबर 47 पे। सो इसमें वही एक्सप्लेन, मैंने पहले आपको बात कही थी आरक्यूडी के मुतालिक, ठीक है। ठीक है, तो जो पीसेस 10 सेंटीमीटर या 4 से बड़े हैं तो आप ऐड करें, डिवाइड बाय टोटल फ्लोर लेंथ, तो इसके बाद आपको आरक्यूडी पता लग जाएगा। और फिर बेस्ड ऑन दिस टेबल यू कैन डिसाइड कि वो कैसी क्वालिटी ऑफ द रॉक है, ठीक है। जी जनाब, एनी क्वेश्चंस? नो सर। अच्छा जी, सो सर उसके बाद ये जो जी है ना सर, ये दरजाक न्यूमेरिकल वगैरह भी आ सकते हैं इस तरह के, या बस सिर्फ ऊपर सरसरी से ही है बस? आपको ना एग्जाम से पहले दोबारा, असल में ना अभी फाइनल ईयर का हमारा जो अंडर ग्रेड है ना, उनका एग्जाम चल रहा है। तो जब उनका एग्जाम इस वीक में खत्म हो जाएगा तो तब डिपार्टमेंट ना कोई ओवरऑल पॉलिसी डिफाइन कर लेगा। तो इंशाल्लाह हम अगली वीक आपको ना बता देंगे कि एग्जाम जो है वो किस टाइप का आ सकता है, ठीक है। सर शफकत महमूद ने ट्वीट किया है कि 15 जुलाई से हो सकता है यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएं। ये पता, आप ये देखेंगे चाइना और हांगकांग, उन लोगों ने भी अपने स्कूल्स खोले थे ना, और फिर उन्होंने 10 दिन बाद बंद कर दिए थे क्योंकि फिर इतना वो इन्फेक्शियस हो रहा था। तो ये लोग भी बस बातें करते हैं अभी, तो आप उससे देखें, जब तक होता नहीं ना तो वी नॉट श्योर, और अगर हो भी जाता तो मुझे लगता है कि वो थोड़े दिनों बाद दोबारा बंद हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज है ना सर फिर नहीं है हम सर। जी, उन्होंने अगला सेमेस्टर जो स्प्रिंग का है ना, जो जनवरी में शुरू होना है, उन्होंने कहा कि वो भी ऑनलाइन होगा। ये तो ऑनलाइन है, सितंबर वाला तो ऑनलाइन होगा ही से होगा। करनी पड़ी है सर। जी जी, तो इसी तरह चलेगा होपफुली, इतनी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेंगे। सो लेट्स सी। सर बैचलर्स वालों को डॉस का पेपर 5 घंटे का दिया है सर। क्या कह रहे हैं? सर मैंने कहा बैचलर्स वालों का डॉस का पेपर 5 घंटे का हुआ है। हाँ जी, हमारे हाँ जी। साथ भी यही करेंगे। अब वही मैं कह रहा हूँ ना कि असल में अभी एक पेपर हुआ ना, एक दो हुए हैं, तो जब ओवरऑल अभी इनकी वैल्यूएशन हो जाएगी अगले वीक में, तो डिपार्टमेंट से मैंने पहले पूछा था, तो दे सेड कि हम लोग जब अंडरग्रेड के एग्जाम ले लेंगे ना, तो देन वी विल डिसाइड अ पॉलिसी कि कौन सा तरीका जो है वो बेहतर रहा है। चलें ठीक हो गया। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन, सो विल नाउ टॉक अबाउट डेफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये शायद हमने पहले भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसके अंदर फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। सो folds and faults are called as geological structures and they are caused by deformation.
So structural geology is a study of the deformation of rocks and effects. So there is a whole science that is called as structural geology. So it is used to study faults and folds. और उनको हम क्या कहते हैं? Geological structures. So this is a very good example of a fold. ठीक है? You see कि initially, if you remember from our previous lecture, we saw that generally all the rocks are sedimentary rocks. ठीक है? Can you see the screen? Yes, sir. So sedimentary rocks, ठीक है? So sedimentary rocks are parallel. They are placed. They are developed around the years, ठीक है? And they are parallel in nature. Now, what happens due to earthquake and due to forces, other forces? What happens? These rocks bends and they bend like this, ठीक है? So these और उसी तरह parallel layers आपको bend नजर आ जाएंगी. So this is called as a fold. All right, due to compression or due to earthquake or due to other compressive forces, so these parallel layers will be deformed like this. So this is called as fold. And once, और अब क्या हो सकता है कि ये इनका जो deformation है या pressure इतना severe हो जाए कि they develop a crack, और फिर आपको वाजिया क्रैक अगर नजर आने लग जाएगा, ठीक है? So that is called as a fault. और उसमें क्या होगा जनरली कि आपके पास लेयर में मूवमेंट होगी ऊपर नीचे की. So this is a fault. So you get the point कि due to compression जो parallel layers हैं सारी जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती हैं naturally, they will be compressed as you can see in the figure. So अगर इसी को हम फर्दर कंप्रेस करेंगे तो you can see कि there is a chance कि यहाँ से ब्रेकेज हो सकता है. नजर आ रहा है ना? So if breakage occurs, so that becomes a fault. Any questions? No, sir. Any questions? No, sir. All clear. Okay. Next thing. अच्छा, next thing is very important. ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन. This is called as strike and dip. ये अब आप जितने भी, क्योंकि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आप एमएस कर रहे हैं, तो wherever you have to deal with rock, so you should know the definition of at least strike and dip. कि strike क्या होती है और dip क्या होती है. किसी ने पहले ये नाम पढ़े हुए, सुने हुए? Yes, sir. Undergraduate में पढ़े. Yes. So you have an idea that strike and dip, these are the orientation. ठीक है? Strike क्या है? It is the compass direction of a rock layer. और dip क्या है? It is the acute angle between the rock layer and the horizontal surface. और उसको यहाँ define किया है. इस if you imagine a rooftop, ठीक है? So horizontal से rooftop कितनी bend पे है, कितने angle पे bend हो रही है? So that is called as dip. कि उसके अंदर कितनी dip है, ठीक है? वो 45 डिग्री लिखा हुआ है. और अगर आप नॉर्थ से देखें उस सरफेस का जो डिस्टेंस है कितना एंगल बना रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्राइक. एनी क्वेश्चंस? यस सर. सर ये जो है क्या कहते हैं असली रॉक्स हैं सर, वो भी इसी तरह करना पड़ेगा सर? सर ये डिप डायरेक्शन और स्ट्राइक डायरेक्शन बता दीजिएगा. मैं एक मिनट बताता हूँ. आपको स्क्रीन पे कैमरा नजर आ रहा है? कैमरा नजर आ रहा है मेरा? यस सर. अच्छा जी. So if this is a bedding plane, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा दूर कर लूं. एक मिनट. तो बल्कि इसको देख लेते हैं. ये देखें. So if this is a bedding plane, आप एक पहाड़ के सामने खड़े हुए हैं and you can see कि इस पे इस तरह की एंगल है बेडिंग प्लेन का. दूसरे एंगल जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है? इधर होगा और इसी तरह ऊपर होगा इस तरफ, ठीक है? सो हॉरिजॉन्टल से अगर ये पेन आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो कैन यू गेस कि इसका एंगल कितना होगा? या चले इस तरह देख लें, ये ज्यादा आसान है. ये आपका प्लेन है, पेन इज टेलिंग मी द हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो इसका जो ये वाला एंगल है, एक मिनट, ये वाला एंगल, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज डिप. हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो बेडिंग प्लेन है वो कितने एंगल पे, अंदाजन बता सकते हैं कितना एंगल है डिप का? 60 45 50 होगा.
ओके तकरीबन 50 whatever, ठीक है। सो यू गेट द पॉइंट कि आपको ये बेडिंग प्लेन नजर आ रहा है, ये बेडिंग प्लेन है, और मैंने देखा कि हॉरिजॉन्टल से उसका कितना एंगल है, ठीक है। सो दिस हॉरिजॉन्टल एंगल, दिस इज कॉल्ड एज टिप। इसमें कोई क्वेश्चन? इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर क्लियर। नहीं सर। ठीक है। सो दिस इज डिप। अगर मैं यही बेडिंग प्लेन, ठीक है, ये बेडिंग प्लेन है, और मैं कहता हूं कि जी इस तरह था, और मैंने कहा कि जो ये डायरेक्शन है, एक मिनट, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, पेन की, ये जो पर्पल कलर है वो पॉइंट आउट कर रहा है नॉर्थ को, ठीक है। समझ आ गई बात? अगर आपको जो पर्पल टिप नजर आ रही है, इफ आई एम सेइंग कि ये जो पर्पल टिप है दैट इज नॉर्थ, ठीक है, और बेडिंग प्लेन की ओरिएंटेशन आपने देख ली है, और आपने इसका डिप ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल था, ठीक है ना। नाउ आई वांट टू नो कि डिप डायरेक्शन क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगा? आई विल इमेजिन एन एरो जो कि इस के सेंटर से निकल रहा है, जो कि इस प्लेन के सेंटर से निकल रहा है, उसका जो एंगल है नॉर्थ से, दैट विल बी दी, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लूं, ये आपका बेडिंग प्लेन था, ठीक है, और पर्पल कलर आपको नॉर्थ शो कर रहा है, और मैं इमेजिन करूं कि यहां से, लेट मी फाइंड अनदर पेन, एक मिनट, मैं एक और पेन लेके आ जाऊं। Alright, so once again this is the bedding plane, ठीक है, ये bedding plane है आपके पास, और जो पर्पल कलर that's indicating north. Now I imagine one arrow that is coming out of the plane, यानी प्लेन की जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है। अब इस एरो का, एक मिनट, अगर मैं इसको आपको इस तरह दिखाता हूं, ये आपको ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक। सो नाउ यू कैन इमेजिन इस प्लेन से निकल रहा है, तो इस प्लेन से आपका एरो कितनी डायरेक्शन पे है, ऑलमोस्ट कितने एंगल पे है? 90। तो इसकी जो स्ट्राइक है दैट इज 90 डिग्रीज। समझ आ गया? ये मैं आपको ऊपर से वही Yes, बेडिंग sir. प्लेन दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि अगर उस बेडिंग प्लेन पे आपने इमेजिन किया कि नॉर्थ आपने देखा वो इस पर्पल कलर से नजर आ रहा था, यू इमेजिन एन एरो दैट इज कमिंग आउट बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, उस एरो का जो एंगल है नॉर्थ से दैट इज कॉल्ड एज स्ट्राइक। समझ आ गई बात? ओके सर सर। ये जो आप एरो परपेंडिकुलर टू प्लेन ले रहे हैं, ये हम जी जी वेक्टर कंसेप्ट लगा सकते हैं, मतलब जी जी, वेक्टर, आप वही ना, वेक्टर आप समझे ना कि बिल्कुल वेक्टर निकल रहा है। एरिया वेक्टर। उस, एरिया वेक्टर उस, सर हमने एक टर्म पढ़ी हुई जी है जी इलेक्ट्रिक। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, वो एग्जैक्टली वही है। तो आप देखें कि उसका एरिया वेक्टर जो है वो नॉर्थ से किस एंगल पे है, वो 90 है, 100 है, 120 है, सो दैट इज डेप्थ डायरेक्शन, सॉरी दैट इज स्ट्राइक, ठीक है। ये देखें उसने अगली पिक्चर में एक्सप्लेन किया है कि आपने देखा नॉर्थ आपका ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्थ से आपके पास जितना एंगल बन रहा है उस बेडिंग प्लेन का, ठीक है, अगर ये एरो निकल रहा था, सो दैट इज द डेप्थ डायरेक्शन। एनी क्वेश्चंस? सर आज बस करें सर इधर ही।
ओके जी, सो दिस इज डिप एंड डिप डायरेक्शन, ये आपने देख लिया। हेलो, आवाज आ रही है जी सबको? यस सर आ रही है आवाज। चलिए ठीक है जी, बस करते हैं, 9 बज गए आप लोग। लेकिन नेक्स्ट टाइम सर से आप रिक्वेस्ट करें हो गया सर आज। सर ऊपर टाइम ना लगाएं, फिर देखिए मेरा अब लेक्चर रह गया ना, मैं इसको कैसे कवर करूंगा। ठीक है सर हमारी वो इंशाल्लाह next time डैम हो की जाएगा। क्लास की ठीक है। अटेंडेंस का भी बता सर दें। उनको अभी वो मैंने जिनका नहीं आपकी ज्वाइन हुआ। अटेंडेंस ले तो लिया है अब इस वक्त, लेकिन सर खालिद ने कहा था अटेंडेंस से कोई मसला नहीं है। ठीक है सर मैं यस वो सर, डैम ये बात इंजीनियर सर खालिद सही है। चलें ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बेहतरीन टेक सी केयर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।